Hello viewers, this is Ataur Rahman. In today's video, I have decided very interesting topic for you, which is none other than picture description. You know, आज के दौर में picture description की क्या अहमियत है, we are going to have in this video. अब picture description में basically होता क्या है, किस तरह से कौन कौन से structures English language के, कौन कौन से tenses हमें इस्तेमाल करने होते हैं, आइए इस picture में हम देखते हैं. Yes viewers, what I personally believe in, जो कुछ भी आप अपने सराउंडिंग में देख रहे होते हैं उसको अपनी ओन वर्डिंग्स में सेंटेंसेस माइंड में बना रहे होते हैं तो इससे ज़्यादा इम्प्रूवमेंट होती है एज कम्पेयर टू क्रैमिंग. क्रैमिंग यू नो CRAMING, क्रैमिंग कहते हैं रट्टाफिकेशन. जब हम रोड लर्निंग की बात करते हैं तो फॉर द टाइम बीइंग हमारी इंग्लिश बेहतर होती है, तो उसके बाद लेटर ऑन दिस इज़ नॉट अ लॉन्ग लास्टिंग. अब हम बात करते हैं पिक्चर की. पहले मैं इसको इंग्लिश में एक्सप्लेन करूंगा और उसके साथ साथ आपको उसकी वोकैबुलरी भी प्रोवाइड करूंगा, तो आपको पता चलेगा कि कैसे हमने सिनेरियो को एक्सप्लेन करना है. नाउ लेट्स हैव अ लुक. Picture 1, there is a boy, he is cycling and going somewhere else. In picture 2, suddenly he had a glance. Had a glance means उसकी नज़र पड़ती है या झलक पड़ती है, and he saw that there is something fishy. Something fishy means दाल में कुछ काला है, and boys are doing something wrong. In picture 3, there are 3 boys, and one of the person tied up the rope with the kitten's tail, and second one is having the stick to beat a kitten. Finally, in picture 4, a boy saved a kitten's life and he is carrying a kitten in his lap and saying to the boys, you just go away from here, teasing an animal is a big sin. So this is all about the pictures. अब इसके अंदर जो मैंने vocabulary use की, had a glance or gathered around, there must be something fishy or tied up the rope, जैसे कि रोप को बांधना ये डिस्क्राइब किया, और टीसिंग, और उसके साथ साथ लैप LAP, लैप मीन्स गोद, और सिन SIN, सिन का वोकैबुलरी यूज़ की. तो इस तरह से स्पेसिफिकली वोकैबुलरी को यूज़ करते हुए आपने पिक्चर को डिफ़ाइन करना होता है. जब आप पिक्चर को अच्छे से डिफ़ाइन कर लेते हैं तो इससे क्या होता है, कॉन्फिडेंस आहिस्ता आहिस्ता बूस्ट अप हो रहा होता है. वंस यू बूस्ट अप योर कॉन्फिडेंस लेवल, ऑब्वियसली फ्लुएंसी इज़ देयर एंड देन यू कैन इम्प्रूव एज सून एज पॉसिबल और एज you can. Now let's have a view of second picture, which is consist of 5 different pics, or this is all about the dreadful accident. Picture 1, you can see there is a boy, he is going and he is hanging a bag on his shoulder and maybe going to the coaching or maybe going to the school. अब पिक्चर डिफाइन करते हुए बहुत कुछ अपने पास से एज्यूम करना है आपने. जब आप एज्यूम करेंगे तो काफ़ी मवाद मिलेगा आपके पास, काफ़ी वर्डिंग्स होंगे पिक्चर को अच्छे से एक्सप्लेन करने के लिए. पिक्चर 2, देयर इज़ अ बॉय, he saw a dreadful accident where the car bumped into the boy. Bump into means BUMP. Bump into means होता है टकरा जाना. ठीक है, जो चीज़ टक्कर मारती है वो एज अ सब्जेक्ट के तौर पे पहले आएगी, जैसे कि कार बम्प इनटू, और जिस चीज़ पे टक्कर हो रही है, जिस चीज़ को मारा जा रहा है वो ऑब्जेक्ट आखिर में आता है. तो कार बम्प इनटू द बॉय. एंड पिक्चर 3, अ बॉय, एन इंजर्ड बॉय इज लाइंग, LYING, लाइंग मीन्स पड़ा हुआ है या लेटा हुआ है, is lying on the road and there is a driver who hit, he is peeping out. तो peeping out is a झांकना, बाहर झांकना. ठीक है, तो a driver is peeping out from his car and people are gathered around and they all are baffled, बुखलाए हुए हैं. Okay, and picture 4, one of the boy rushed, RUSHED, rushed means तेजी से जाना, rushed towards the telephone booth to call an ambulance. In picture 5, the ward boys are hospitalizing an injured person and rest of the people are standing over there and watching that what is going on. Let's move towards the third attempt of the picture, which shows that this is the magical well, where the 3 boys are sitting and they are planning that we must go towards the magic well and whatever we throw inside it, and they personally believe in that whatever we throw our wishes come true. So one of the boy, he tried and he threw the coin inside the well. Threw यहाँ पे मैंने इस्तेमाल किया past tense के लिए, subject plus second form, तो throw, threw, thrown. तो यहाँ पे मैंने second form
फॉर्म इस्तेमाल की, थ्रू द कॉइन इन द वेल एंड ही विश्ड दैट देयर विल बी माई बर्थडे एंड द केक विल बी प्रोवाइडेड टू मी. In picture 3, another turn of the boy comes and he threw the coin inside the well and he wishes that I must have many more friends so that we would enjoy a lot here. In picture 4, the last turn of the boy, he also came and he threw the coin inside the well and he assumed that I must have my grandfather or I must have my father along with me so that we will definitely have a enjoyment a lot. Yes viewers, what did you notice? Did you see something improvement in yourself? तो इसी तरीके से बहुत सारी पिक्चर डिस्क्रिप्शंस हमारे पास मौजूद हैं जिसमें हम अपने स्टूडेंट्स को प्रैक्टिकल सिचुएशंस देते हैं और उसमें वो बहुत कुछ सीखते हैं. तो आप क्यों नहीं कर सकते? If you think positive, definitely you can also improve your English by doing such kind of activities. अब इस एक्टिविटीज़ से होता क्या है? देखिए, हमें टेंसेस से बाहर निकल के इंग्लिश बोलनी है. सारा गेम टेंसेस का नहीं है. कुछ वोकैबुलरी भी है, टेंसेस भी सपोर्ट करता है आपको, बहुत हद तक सपोर्ट करता है, मगर जब तक आप ग्राउंड में नहीं उतरेंगे खेलने के लिए, यू कैन नॉट इम्प्रूव. अगर आपको पता है कि गाड़ी कैसे चलाते हैं, ये स्टीयरिंग है, ये गियर है, ये ब्रेक है और ये एक्सेलरेटर है, तो जब आप इसको सब चीज़ें आपके पास नॉलेज है, पढ़ रहे हैं, मगर जब तक आप कार में बैठ के उसको प्रैक्टिकली नहीं चलाएंगे, इसी तरीके से आपको गाड़ी नहीं आएगी चलाना. सेम लाइक दिस, बहुत सारी किताबों से पढ़ लिया, स्ट्रक्चर्स मौजूद हैं, टेंसेस के कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं, वोकैबुलरी है, एडजेक्टिव्स हैं, एडवर्ब्स हैं, सब चीज़ें माइंड में मौजूद तो हैं, मगर उसको यूज़ करने के लिए, प्रैक्टिकल सिचुएशंस को फेस करने के लिए यू हैव टू विजिट पार्क कॉलेज, जहाँ पर हम अपने स्टूडेंट्स को ऐसी सिचुएशंस देते हैं जहाँ पे वो प्रैक्टिकली बहुत कुछ सीखता है. अब मैं आपके सामने एक पिक्चर डिस्क्राइब कर रहा हूँ यहाँ पर, और ये पिक्चर है, इट्स ऑल अबाउट, आई एम नॉट टेलिंग यू, मैं आपको नहीं बता रहा, आप खुद ही रिकग्नाइज करें. इसका सब टाइटल देंगे, सब टाइटल देने के बाद इसको अपनी ओन वर्डिंग्स में एक्सप्लेन करेंगे जो भी नॉलेज आपकी है, और कमेंट सेक्शन में आप हमें ये लिख कर दें कि किस तरह से आपने पिक्चर डिस्क्रिप्शन को डिस्क्राइब करना है, कैसे किया, कैसे उसको ऑब्जर्वेशन है, जो भी उसमें ग्रामेटिकल मिस्टेक्स होंगी, आई विल डेफिनेटली टेल यू. ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज वीडियो. इंशाल्लाह सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. टिल देन टेक केयर योरसेल्फ, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल. टिल देन, Allah Hafiz.